Hello everyone, good morning to all of you. So let's start with the newspaper discussion of 8th of November 2021. Before that, if you want the PDF of this particular video, you can go to Telegram and search for this channel, Study Score Official. You'll get the PDF there. Starting with the news analysis, the first topic for discussion is Pobitora Wildlife Sanctuary. This particular wildlife sanctuary is in Assam, and this is known for its highest density of one horn rhinos in the world, right? So in the entire world, it has the highest density of one horn rhinos. इसके अलावा it also has the second highest concentration of one horn rhinos after Kaziranga National Park. So in this particular statement we learn two things, that the highest concentration of one horn rhinos is in Kaziranga National Park and the second highest is in Pobitora Wildlife Sanctuary. After that, this Pobitora Wildlife Sanctuary is also called as Mini Kaziranga. Now, this Mini Kaziranga is not because of this one horn rhino species, but this is because of the similar landscape and vegetation that is present in this particular wildlife sanctuary as compared to Kaziranga. ठीक है, so जो wildlife sanctuary दोनों में जो landscape है और vegetation है बहुत ही similar है, इसलिए this particular thing is also called as Mini Kaziranga. इसके अलावा what are the main faunas, that is the animals or species that is found here? They are leopard cat, fishing cat, jungle cat, feral wild pigs, Chinese pangolins, etc. These are some of the species that are found in Pobitora Wildlife Sanctuary. Apart from this particular wildlife sanctuary, 72% of this wildlife sanctuary, it consists of wet savanna. This is a type of grasslands. Okay. Now, इसके अलावा it is also infested by water hyacinth. Now, what is water hyacinth? This is an invasive aquatic plant. आपने देखा होगा किसी पॉन्ड्स वगैरह में बड़े बड़े वाटर हाइसिंथ होते हैं, मतलब एक प्लांट के टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं जो एक मैट टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट कर देते हैं पूरे के पूरे पॉन्ड के सरफेस पे, जिसके कारण सनलाइट जो है वो नीचे तक पेनिट्रेट नहीं कर पाती है और जो नीचे एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनकी डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ सनलाइट. ठीक है, इसके अलावा देर आर सम अदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन असम टू. फर्स्ट इज डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, काजीरंगा, मानस, नामेरी एंड ओरांग नेशनल पार्क. नाउ इफ यू look at this particular map closely, you will see the exact location of these particular wildlife sanctuaries. Now first you can see this here is Manas Wildlife Sanctuary, then comes here is Pobitora Wildlife Sanctuary, then comes Orang, then comes this Lakova Wildlife Sanctuary, Kaziranga, and finally in the easternmost part we have Dibru Sakhova National Park. Now the question can be asked about west to east arrangement of these wildlife sanctuary. So here you see first is Manas, then comes Pobitora, Orang, Lakova, Kaziranga, and finally comes Dibru Sakhova. Okay? So just try to remember this particular as a sequence from west to east. Now the next topic is about Bhopal gas tragedy. This happened in 1984 on December 3rd. Okay, on 3rd of December 1984, a gas, that is methyl isocyanate, it leaked from a pesticide plant of Union Carbide. So this is the name of the company, pesticide plant of Union Carbide, which has now been renamed as Dow Chemicals. ठीक है, this is a MNC that is in मध्य प्रदेश MP. और यहाँ पर क्या हुआ था, इस पर्टिकुलर पेस्टिसाइड फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनाइट नाम की एक गैस रिलीज हो गई थी इन रात में. ठीक है, रात के टाइम में रिलीज हो गई थी, उसके कारण काफ़ी लोगों की डेथ हो गई थी. अराउंड 40 टन्स ऑफ गैस एंड अदर केमिकल्स वॉज लीक्ड. ठीक है, इसकी बात अगर करें हम मिथाइल आइसोसाइनाइट की बात करें, इट इज़ एक्सट्रीमली टॉक्सिक गैस और कहा जाता है कि अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन अराउंड 21 पार्ट्स पर मिलियन 21 ppm अगर एयर के अंदर हो गया तो इट कैन कॉज डेथ विद इन मिनट्स. तो इंस्टेंट डेथ क्रिएट कर सकता है ये लोगों के अंदर बिकॉज ऑफ इनहेलिंग ऑफ गैस. ठीक है, जो भी पर्सन इस गैस को इनहेल करेगा उसकी इंस्टेंटली डेथ हो जाएगी ऑर्गन फेलियर के कारण. नाउ दिस इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द वर्स्ट केमिकल डिजास्टर ग्लोबली. सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे के पूरे ग्लोबल लेवल पे आज तक में से वन ऑफ द मोस्ट ट्रैजिक इंसिडेंट्स था ये. और ये ऐसा इंसिडेंट है जो अभी भी काफ़ी लोगों को वो कर रहा है, सफ़र कर रहा है. इट स्टिल कॉन्टिन्यूज टू हैव इट्स अफेक्ट ऑन द पीपल. ठीक है, नाउ दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद 7 सालों के बाद 1991 में क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने एक पब्लिक लाइबिलिटी एक्ट बनाई थी जिसके तहत जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उन सबको इंश्योरेंस लेना था. और जो इंश्योरेंस के लिए जो प्रीमियम भरते हैं उस प्रीमियम से इन्वायरमेंट रिलीफ फंड को मतलब फंडिंग प्रोवाइड करनी थी, इन्वायरमेंट को रिलीफ करना था. कैसे? देखिए, भोपाल गैस ट्रेजेडी इज नॉट द ओनली गैस ट्रेजेडी दैट हैज़ हैपेंड इन इंडिया. इसके अलावा और भी बहुत डिफरेंट इंसिडेंट्स हुए हैं. तो जितने भी विक्टिम्स हैं उन सबको कंपनसेट करने के लिए इस पर्टिकुलर फंड को यूज़ किया जाता है और यहीं से पैसे दिए जाते हैं उनको. ठीक है, अब ये न्यूज़ में क्यों है? दिस इज अ न्यूज़ बिकॉज अब्दुल जब्बार नाम के एक पर्सन है. ठीक है, पर्सन थे, उनकी अभी रिसेंटली डेथ हो गई है, बट उन्होंने भोपाल गैस विक्टिम्स की रिहेबिलिटेशन और कंपनसेशन के लिए बहुत काम किया है. रिसेंटली उनको पद्मश्री मिलने के लिए अनाउंसमेंट हुई है पॉस्टमसली. ठीक है, सो दैट्स व्हाई भोपाल गैस ट्रेजेडी वाज इन न्यूज़. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट मुल्ला पेरियार डैम. अगर आपको याद होगा तो हमने इसके बारे में 2-3 दिन पहले भी बात की थी. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ मिशनरी ग्रेविटी डैम.
ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज अ मेसनरी ग्रेविटी डैम। देखिए, मेसनरी का मतलब होता है जो स्टोन, ईंट, चूना पत्थर इन सब से बनता है उसे कहते हैं मेसनरी। एंड ग्रेविटी डैम का मतलब क्या है? ग्रेविटी डैम का मतलब होता है जैसे ये डैम अगर है, ठीक है, दिस इज द डैम, इस तरफ वाटर होता है, दिस इज वाटर, ठीक है। ये वाटर का जो प्रेशर है ना, ये इस डैम को सीधा सीधा रहने में हेल्प करता है। सो एक्चुअली ये ग्रेविटी डैम का मतलब क्या है कि ये वाटर का लेवल हेल्प करेगा इस पर्टिकुलर डैम को। इधर देखिए, इधर वाटर लेवल कम होगा, इधर वाटर लेवल ज़्यादा होता है। ये जो वाटर का जो फोर्स लगता है इस पर्टिकुलर चीज़ पे, इस डैम के ऊपर, वो हेल्प करता है इस डैम को स्ट्रांग बनने में, ठीक है। नाउ देखिए, मेसनरी ग्रेविटी डैम का डेफिनेशन देखिए, इट इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम कंक्रीट और स्टोन मेसनरी एंड डिजाइन टू होल्ड बैक वाटर बाय यूजिंग ओनली द वेट ऑफ द मटेरियल। जो इसका वेट ऑफ द मटेरियल है प्लस जो रेजिस्टेंस इनकी हेल्प से करता है, एंड इट्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट द फाउंडेशन टू अपोज द हॉरिजॉन्टल प्रेशर ऑफ वाटर पुशिंग अगेंस्ट इट। ये जो पानी इसको अगेंस्ट में पुश करता है, ये एक्चुअली इसकी हेल्प करता है यहाँ पर बिल्कुल सीधे यहाँ पे रहने में, ठीक है। नाउ दिस इज ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ मुलायर रिवर एंड पेरियार रिवर ऑफ केरला, ठीक है। केरला में दो रिवर्स हैं, दोनों के कॉन्फ्लुएंस पे इस डैम को बनाया गया है। इट इज ऑल्सो लोकेटेड ऑन कार्डमम हिल्स इन वेस्टर्न घाट्स। देखिए, यूपीएससी का ऐसे टॉपिक्स यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक्स होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी लगातार पूछती रहती है, जहाँ पर वो आपको मुल्ला पेरियार डैम के स्टेट्स के बारे में कभी मतलब बहुत ही नॉर्मली पूछेगी, ज़्यादा चांसेस है कि नहीं पूछेगी, बट वो उन हिल्स के बारे में पूछ सकती है जहाँ वो लोकेटेड है, फिर वेस्टर्न घाट्स के बारे में पूछ सकती है, वहाँ पर इसको कंफ्यूज करने की कोशिश कर सकती है वो। इसके अलावा दिस डैम इज लोकेटेड इन केरला बट इट इज ऑपरेटेड एंड मेंटेन बाय तमिलनाडु। देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल रीजन ये है कि तमिलनाडु इसको यूज करके अपनी जो साउथ में जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसको उसका ड्रिंकिंग रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करता है। बट हुआ क्या था कि जब ब्रिटिश रूल चल रहा था उस टाइम 999 ईयर्स के लिए एक लीज अग्रीमेंट दे दिया गया था तमिलनाडु को कि वो इस पर्टिकुलर डैम को ऑपरेट कर सकता है फॉर 999 ईयर्स, ठीक है। तो उसी के तहत तमिलनाडु अभी भी इस पर्टिकुलर चीज को यूज कर रहा है। इसके अलावा देयर इज अ पेरियार नेशनल पार्क जो कि इस डैम रिजर्वायर के बहुत पास में है, ठीक है। और दिस पेरियार नेशनल पार्क इट इज ऑल्सो टाइगर रिजर्व। तो ऐसे क्वेश्चंस भी यूपीएससी के बहुत ही फेवरेट क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चन भी डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में, ठीक है। इसके अलावा द प्रोटेक्टेड एरिया अराउंड द डैम एंड द रिजर्वायर इज क्लासिफाइड एज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। तो ये देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो आ सकता है ये है लोकेटेड ऑन कार्डमम हिल्स। सेकंड क्वेश्चन जो आ सकता है वो ये है कि पेरियार नेशनल पार्क इसके पास में प्रेजेंट है। एंड थर्ड क्वेश्चन जो आ सकता है वो ये आ सकता है कि पेरियार एग्जैक्टली क्या क्या है, मतलब पेरियार जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो क्या क्या है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए, फर्स्ट सबसे पहले नेशनल पार्क है। उसके अलावा ये देखिए, सबसे पहले पेरियार की बात करें तो ये सबसे पहले नेशनल पार्क है, इसके अलावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसके अलावा टाइगर रिजर्व है, और इसके अलावा पेरियार के आसपास जितना पार्ट है उन सबको कंबाइन करके इट इज ऑल्सो बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये चार डेजिग्नेशंस ऑलरेडी पेरियार नेशनल पार्क को मिल चुके हैं, ठीक है, हमें ये ध्यान रखना है। नाउ इस डैम का मेन काम क्या है? दिस डैम इंटेंड्स टू डाइवर्ट द वाटर ऑफ वेस्ट फ्लोइंग रिवर पेरियार। जो पेरियार जो है एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, उसका वाटर को डाइवर्ट करके ईस्टर्न साइड में इसको ट्रांसफर किया जाता है, ताकि जो तमिलनाडु का जो रेन शेडो एरिया है जहाँ पर बारिश नहीं आती है वहाँ पर प्रॉपर्ली इरिगेशन वगैरह के लिए एंड ड्रिंकिंग रिक्वायरमेंट्स के लिए पानी पहुँच सके, ठीक है। ओके, इसके अलावा पेरियार रिवर के बारे में अगर हम देखें, दिस इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन केरला, ठीक है। इसके लेंथ अराउंड 244 किलोमीटर है, ये आप देख सकते हैं। दिस इज द स्टेट ऑफ केरला, दिस इज द स्टेट ऑफ केरला, ठीक है। एंड दिस इज पेरियार रिवर एज यू कैन सी। ओके, अब इसके अलावा दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज लाइफलाइन ऑफ केरला। क्यों? बिकॉज इट इज अ पेरिनियल रिवर और ये पूरे साल पानी प्रोवाइड करता है, ठीक है, केरला को। इसके अलावा दिस ओरिजिनेट्स फ्रॉम शिवगिरी हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड फ्लोज थ्रू पेरियार नेशनल पार्क। ये भी हमने देखा। तो ये भी क्वेश्चन यूपीएससी के लिए स्टैंडर्ड है कि पेरियार रिवर जो है वो ये पेरियार रिवर जो है पेरियार नेशनल पार्क के थ्रू फ्लो करती है, ठीक है। एंड इससे कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं। देखिए, वैसे तो ट्रिब्यूटरीज बहुत सारे हैं बट दीज फोर आर वेरी इंपॉर्टेंट। मुथीफूजा, ठीक है, मुलायर रिवर, चरुथोनी एंड प्रिंजाकुटी रिवर। ये चार जो रिवर्स हैं ये इसके डायरेक्ट ट्रिब्यूटरीज हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव हरियाणा लॉ ऑन हायरिंग। देखिए, हरियाणा ने रिसेंटली डिसाइड किया है टू रिजर्व 75% जॉब्स फॉर लोकल्स। ये उन्होंने रिसेंटली एक डिसीजन लिया है। नाउ इसका इंपैक्ट क्या पड़ सकता है? इसका इंपैक्ट ये हो सकता है, इट कुड लीड टू एक्सोडस ऑफ लार्ज डोमेस्टिक एंड मल्टीनेशनल इंडस्ट्रीज अक्रॉस सेक्टर सच एज ऑटो इंडस्ट्रीज एंड आईटी इंडस्ट्रीज, जो कि हाईली स्किल्ड मैन पावर पे डिपेंडेंट है। अब देखिए, जितने भी आईटी जॉब्स होते हैं उनके लिए हाईली स्किल्ड लोग चाहिए, ताकि वो लोग प्रॉपर्ली उसको काम कर सके, उसका जो भी रिक्वायरमेंट्स वगैरह है, टारगेट्स वगैरह उसको कंप्लीट कर सके। तो जरूरी नहीं है कि हर लोकल के अंदर वो पर्टिकुलर स्किल्स हों ही, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर आ सकता है जिसके कारण जो बड़ी बड़ी डोमेस्टिक कंपनीज या फिर जो एमएनसीज हैं वो लोग इस हरियाणा को छोड़कर अपना न्यू जगह जा सकती है, मतलब यहाँ इसको छोड़ सकती है। जैसे आप हमें पता है कि हरियाणा में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है गुरुग्राम, जो कि बहुत ही मेजर हब बन चुका है आईटी इंडस्ट्रीज के लिए। अगर
इस पर्टिकुलर लॉ को जल्दी से जल्दी मतलब इसके या कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे इसको, नहीं तो बहुत सारी कंपनीज ऐसी होंगी जो उस गुरुग्राम को छोड़ के जा सकती हैं और ये हमारा फिर हब नहीं रहेगा बेसिकली। ठीक है, हरियाणा गवर्नमेंट ने एक डेट दिया है 15 जनवरी द नेक्स्ट ईयर, जब बोला है उन्होंने कि उसके बाद ये लॉ स्टार्ट होगा। एंड ये बोला है कि हर वो फर्म जिसमें 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, दे विल रिजर्व 75% ऑफ ऑल जॉब्स जिसकी सैलरी 30,000 रुपये से कम है। मतलब 30,000 रुपये से कम के सैलरी वाले जॉब्स में 75% जॉब्स को है उसको रिजर्व करना पड़ेगा आपको लोकल लोगों के लिए। ठीक है ना, लेकिन बात यह है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी एंड फ्री मूवमेंट ऑफ वर्कर्स, फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल को अगर लॉ को हम ध्यान से देखें, देन वी शुड अलाउ एनी इंडियन, दे शुड बी अलाउड टू वर्क इन एनी स्टेट विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। बट हरियाणा गवर्नमेंट का ये जो 75% का रूल है, इससे क्या होगा, रिस्ट्रिक्शन कॉज होनी स्टार्ट हो जाएंगे। इंडिया हैज़ ऑलरेडी लॉस्ट टू श्रीलंका एंड बांग्लादेश इन टेक्सटाइल्स। अगर टेक्सटाइल की बात करें तो ऑलरेडी श्रीलंका और बांग्लादेश दोनों से पीछे हो चुका है इंडिया रैंकिंग के अंदर। इसके अलावा देखिए, लास्ट ईयर आपको याद होगा जब चाइना के अगेंस्ट मतलब प्रोटेस्ट वगैरह चले थे, तो बहुत सारी टेक्सटाइल कंपनी ने चाइना को छोड़ दिया था और वो न्यू अपना जगह ढूंढ रही थी, न्यू मार्केट ढूंढ रही थी जहाँ वो जा सके। इंडिया ये बिलीव कर रहा था, इंडिया को ये होप था कि चाइना की जितने भी एमएनसीज छोड़ रही हैं उसमें ज़्यादातर कंपनीज इंडिया आएंगे, बिकॉज इंडिया इज़ अ वेरी बिग मार्केट ऑफ टेक्सटाइल्स। बट ऐसा हुआ नहीं। दे शिफ्टेड टू वियतनाम, इंडोनेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश, वैसी कंट्रीज में गए। तो पॉइंट इसके टेक्सटाइल में इंडिया ऑलरेडी काफ़ी पीछे है। ठीक है, अब गुरुग्राम भी एक बहुत ही मेजर हब है टेक्सटाइल्स का। अगर इसमें भी गुरुग्राम से भी अगर बहुत सारी एमएनसीज निकल जाएंगी तो यहाँ पर और प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू हो जाएंगे। कुछ सजेशंस दिए गए हैं। सजेशन ये है कि हम अगर लोकल्स को हायर करने के लिए कंपेल कर रहे हैं कुछ कंपनीज को, अगर हम कंपेल ना करें, सिंपली स्टेट अगर 25% सब्सिडी या फिर जितना भी उनको सही लगे उतना सब्सिडी प्रोवाइड करे टू फर्म्स एज एन इंसेंटिव फॉर हायरिंग लोकल्स, ताकि वो इंसेंटिव प्रोवाइड करे कि अगर कोई पर्टिकुलर कंपनी लोकल्स को हायर करती है तो हम उसकी सैलरी का इतना परसेंटेज उनको पे नहीं करना पड़ेगा, वो हम पे कर देंगे, या फिर जो भी हो किसी भी तरीके से एक कंपनसेशन या फिर इंसेंटिव प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि वो लोग मतलब कंपेल ना हो, उनको ऐसा ना लगे कि उन्हें फोर्स किया जा रहा है कुछ करने के लिए, बट वो अपनी खुशी से जो चाहे मतलब करना चाहे, ताकि उनके भी बेस्ट इंटरेस्ट में रहे। बिकॉज देखिए, कोई भी कंपनी जो काम करती है वो अपने प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करती है। अगर उन्हें प्रॉफिट नहीं लगेगा तो वो वहाँ पे काम नहीं करना चाहिए, वो किसी ऐसी जगह पे मूव करना चाहेंगे जहाँ पर उनको ईजिली काम मिल रहा है, फिर ईजिली लेबर मिल रहा है। Okay, now talking about the next topic, it is about Augusta Westland VVIP chopper scam. ये स्कैम 2010 में, देखिए 2010 में क्या हुआ था, इंडिया को 12 हेलीकॉप्टर्स परचेज करने थे फ्रॉम अ कंपनी कॉल्ड एज फिनमे मैनिका। ठीक है, ये इटली की कंपनी है। लेकिन बात क्या हुई थी, 2012 में एक स्कैम सामने आया था। ये पता चला था कि बहुत सारे ब्राइब्स वगैरह पे किए गए हैं मिडलमैन्स को, कि इंडियन एयरफोर्स को ये करना था और इंडियन एयरफोर्स ने अपनी बिडिंग निकाली थी। ठीक है, और ये बिडिंग मतलब सही जगह पर जाए, यानी कि ऑगस्टा वेस्टलैंड कंपनी के पास ही जाए, इस बात को इंश्योर करने के लिए बहुत सारे ब्राइब्स वगैरह पेड किए गए थे और बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम आए थे इस पर्टिकुलर स्कैम में। तो वो सब काफ़ी मतलब प्रॉब्लम हो गई थी उस टाइम में। ओके, नो ये हेलीकॉप्टर्स हम परचेज कर रहे थे इसलिए ताकि हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और जितने भी वीवीआईपी पीपल लोग हैं यहाँ के, उनको ट्रैवल करने के लिए चीज़ यूज़ कर रहे थे। इस हेलीकॉप्टर को परचेज किया जा रहा था। देखिए 2013 में ब्रूनो स्पैग्नोलेनी नाम का एक पर्सन था जो कि ऑगस्टा वेस्टलैंड के उस टाइम सीईओ थे। उनको अरेस्ट कर लिया गया था बाय इटालियन अथॉरिटीज। इटली उनकी कंट्री के अंदर ही उनको अरेस्ट कर लिया गया था ऑन चार्जेस दैट उनकी कंपनी जो है कुछ मिडलमैन को ब्राइब कर रही है टू सिक्योर द डील विद इंडियन एयरफोर्स। मतलब गलत तरीके से इन डील को साइन करने की कोशिश कर रही है। देखिए, डील साइन करने का सही तरीका क्या है, आप बिडिंग में पार्टिसिपेट कीजिए, आप अपनी बोली लगाइए, अगर जो सामने आपको जो भी वो बिडिंग करा रहा है अगर उसको सही लगेगा तो वो आपको ऑफर करेगा कि हम इतना प्राइस करने वाले हैं। बट अगर आप किसी तरीके से ब्राइब देकर उस प्राइस को कम कराना चाहेंगे या फिर अपनी कंपटीशन को कम कराना चाहेंगे और बाकी जो बिडर्स आए हुए हैं उनसे कॉम्पीट नहीं करेंगे, तो दैट इज नॉट राइट। तो इसी पर्टिकुलर केस में इन पर्सन को अरेस्ट किया गया था 2013 के अंदर। ठीक है, नाउ इसके अलावा 2014 में क्या हुआ था, इस डील को कैंसिल कर दिया गया था बाय द गवर्नमेंट और इस कंपनी को, ऑगस्टा वेस्टलैंड नाम की कंपनी को बैन कर दिया था इंडियन गवर्नमेंट ने फर्दर ट्रांजेक्शंस के लिए। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि एग्जैक्टली इस हेलीकॉप्टर में है क्या। ऑगस्टा वेस्टलैंड जो इंडिया परचेज करना चाह रही थी, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी लेंथ देखिए, अराउंड 75 फीट की इसकी लेंथ होने वाली थी, अराउंड 22 फीट की इसकी हाइट है। ठीक है, 61 फीट का इसका रोटर का डायमीटर था और इसकी हाईएस्ट स्पीड देखिए, क्रूजिंग की स्पीड जो है इसकी, इट इज़ अराउंड 278 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, अराउंड 1390 किलोमीटर का मैक्सिमम रेंज है इसका एंड 6 घंटे और 5 मिनट तक ये लगातार ट्रैवल कर सकता था।
ठीक है। इसके अलावा इसका इंजन बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंजन था, इसमें 2 इंजन क्रूज मतलब इसका इंजन जो था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, जो GE CT7BE इंजन इसका नाम है, जो कि इटली का एक इंजन है और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंजन माना जाता है। इसके अलावा अगर वीवीआईपी लोग बैठेंगे तो एक साथ इसमें 10 वीवीआईपीज बैठ के जा सकते हैं, और अगर मतलब कोई और बैठता है तो टोटल 38 पर्सनस भी बैठ के जा सकते हैं। यानी कि जब भी वीवीआईपी जाएंगे तो उनको एक पर्टिकुलर तरीके से बैठाया जाएगा, कन्फिग्रेशन में बैठाया जाएगा उनकी सेफ्टी के लिए, जो कि 10 लोग जा सकते हैं एक साथ में, और अगर नॉर्मल पीपल है तो 38 लोग जाएंगे एक साथ में, ठीक है। इसके अलावा अगर आप पीछे देखेंगे तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोबस्ट एयर फ्रेम था, जो रोटर होता है पीछे, हर हेलीकॉप्टर के पीछे एक रोटर होता है जो उसे सपोर्ट प्रोवाइड करता है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इसकी टेल देखेंगे तो ये बहुत ही लंबी टेल है। आप इसकी टेल देखिए, बहुत ही लंबी टेल है। इस लंबी टेल का काम ये है कि जितने भी वीवीआईपी की कार्स हैं वो इजीली इसके अंदर आ सकती है लास्ट तक, और यहाँ पर आके स्टोर हो सकती है, मतलब यहाँ पर आके पार्क कर सकती है और उसके बाद वीवीआईपी डायरेक्टली अंदर आ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए 1 and 2 सेट ऑफ पेयर ऑफ व्हील्स के अलावा यहाँ पर एक रिट्रैक्टेबल लैंडिंग गियर्स भी हैं, जो कि इसको एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं लैंडिंग करते टाइम। इसके अलावा इसके पास आप देखेंगे तो एडिशनल ये सेल्फ डिफेंस सूट है, जो कि आर्मर की तरह काम करेगा और इसको सेफ बनाएगा और ज़्यादा सेफ बनाएगा। इसके अलावा इसके अंदर एक रडार है जो कि 360 डिग्री का सर्विलेंस प्रोवाइड करता है, जो चारों तरफ देखा जा सकता है अंदर से, और 2 पायलट्स की कैबिन है। तो दिस वॉज द पर्टिकुलर हेलीकॉप्टर जो हम खरीदने वाले थे, ठीक। ना आप देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों है। न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज G20 का जो समिट हुआ था अभी रिसेंटली, तो इंडिया और इटली के काउंटर पार्ट्स मिलते हैं। इंडिया की तरफ से प्राइम मिनिस्टर मोदी और इटली की तरफ से उनके प्राइम मिनिस्टर मारियो ड्रागी, ये दोनों ने आपस में मीटिंग की और उन्होंने डिसाइड किया, काफ़ी चीज़ें डिस्कस की। उसमें सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि इटली और इंडिया के बीच में 2 इश्यूज क्या हैं। सबसे बड़े 2 इश्यूज हैं। फर्स्ट इशू तो यही था जो हमने अभी डिस्कस किया, ऑगस्टा वेस्टलैंड केस के बारे में, जो अब ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है। इंडिया ने कुछ सर्टन कंडीशंस वगैरह लगाए हैं कि किस तरीके से हम ट्रेड करेंगे, बट ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है। इसके अलावा एक और केस है, एनरिका लेग्जी केस। इसमें क्या हुआ था, 2 इटली के मरीन्स थे, मरीन ऑफिसर्स थे, एम लैटोरे एंड एस गिरॉन। इन दोनों ने क्या किया था, केरला के एक फिशरमैन को शूट कर दिया था इन 2012 में। एनरिका लेग्जी एक शिप का नाम है, ठीक है। एनरिका लेग्जी एक शिप का नाम है, वहां पर 2012 के अंदर उनको शूट कर दिया गया था, एक पर्टिकुलर फिशरमैन को, इन 2 मरीन्स के द्वारा, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा केस वगैरह चला था, लेकिन फाइनली इंडिया ने डिसाइड किया है कि उस मैटर को ड्रॉप कर दिया जाएगा, फॉलोइंग द डिसीजन बाय इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉ ऑफ द सी। देखिए ये जो पर्टिकुलर बॉडी है, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉ ऑफ द सी, इस बॉडी ने इस केस को सुना और फाइनली डिसाइड किया कि इस मैटर को ड्रॉप कर देना चाहिए, बिकॉज इंटरनेशनल कॉपरेशन इससे खराब होगा। तो इसके कारण इंडिया ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और फाइनली इस चीज़ को ड्रॉप कर दिया, और इटली ने एज ए कंपनसेशन 10 करोड़ रुपए पे किए थे, जिसमें ज़्यादातर जो पैसा है विक्टिम की फैमिली को दे दिया गया है, ठीक है। तो इस केस को भी हम ऑलमोस्ट सॉर्टेड मान सकते हैं। अब देखिए ये 2 मेन इश्यूज थे जो इंडिया और इटली को पिछले कुछ सालों से साथ में कॉपरेट करने से रोक रहे थे। बट अगर अब देखें हम, जब ये दोनों इश्यूज सॉल्व हो चुके हैं, तो देखिए ये जो फर्स्ट केस था, ये जो ऑगस्टा वेस्टलैंड केस था, अभी सॉल्व हो गया। कैसे सॉल्व हुआ है, अभी रिसेंटली इस पे हमने बैन हटा दिया है, ठीक है। जो ये बैन लगाया हुआ था गवर्नमेंट ने इसके ऊपर, ये बैन को हटा दिया गया है अभी रिसेंटली। तो जब ये बैन हटाया गया है, जब ये बैन था, तो उससे इंडियन नेवी को थोड़ा नुकसान हो रहा था, बिकॉज इंडियन नेवी को भी अपना एक हैवी वेट टॉर्पीडोज खरीदना है, और उसके लिए वो अपना एक अच्छा सप्लायर ढूंढ रही है, ठीक है। जब वो सप्लायर ढूंढ रही है तो उसके लिए ऑगस्टा वेस्टलैंड एक अच्छा सप्लायर हो सकता है, या फिर दूसरी कंपनी जो है, इटली की और कंपनी जो है, वो सब आपस में बिडिंग करके एक अच्छा सप्लायर बेस बना सकती है। Now, both countries they can now relaunch their partnership focusing on multilateralism, यानी कि साथ में काम कर सकते हैं। इसके अलावा they can cooperate against pandemic, ठीक है। पैंडेमिक में दोनों साथ में काम कर सकते हैं। एनर्जी ट्रांजिशन एंड डिफेंस टाइज के ऊपर, ये चारों सेक्टर्स में दोनों कंट्रीज आपस में साथ मिलकर अच्छे से काम कर सकती हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कोविड पैंडेमिक पीरियड में जब ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में सब कुछ रुका हुआ था, सारी इंडस्ट्रीज वगैरह, सारी इन्वेस्टमेंट रुकी हुई थी, इसके बावजूद इटली के कुछ कंपनीज ने 14 न्यू इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स इंडिया के अंदर लॉन्च करने की बात कही थी, ठीक है। और वो चीज़ अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। तो ये शो करता है कि इंडिया और इटली जो फिर से गुड टर्म्स पे आ रहे हैं और फिर से अपने रिलेशनशिप को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ इटली की अगर हम मैप को देखें, सो दिस इज इटली। आप इसके लोकेशन देखिए, ये फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, स्लोवानिया, ठीक है, और क्रोएशिया, ये 5 इसके वो है नेबरिंग कंट्रीज हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए आप इसमें एक ये आइलैंड है, सार्डिनिया आइलैंड, और नीचे देखिए सिसिली, ये दोनों इटली का पार्ट है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कॉर्सिका एक आइलैंड है जो कि है इटली के जस्ट पास में, बट वो फ्रांस की सॉवरेनिटी के अंदर आता है, ठीक है। इटली का कैपिटल हमें पता है कि रोम है। रोम के जस्ट बगल में एक छोटा सा कंट्री है, वेटिकन सिटी, इसके बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। ये सारे का सारे मेडिटेरियन सी के अंदर आता है, हमें ये भी ध्यान रखना है। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट इटली केस। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट AY.4.2। नाम से आपको पता चल गया होगा, पिछले 2 सालों से हम ऐसे ही नाम सुनते आ रहे हैं। दिस इज अ न्यू वेरिएंट ऑफ कोविड-19।
बट इट इज़ नॉट ऑफ कंसर्न, ऐसा बोला गया है कि ये कंसर्न का नहीं है, ठीक है, इट इज़ ओके। और जो हमारी वैक्सीन जो हम यूज़ कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट वैक्सीन, वो सबके सब इसके अगेंस्ट इफेक्टिव है, सो दिस इज नॉट ऑफ अ कंसर्न। हमारा मेन कंसर्न क्या था, डेल्टा वेरिएंट, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, B.1.617.2, और इसके अलावा एक और है AY.X। ये दो वेरिएंट्स ऐसे हैं जो हमारे लिए कॉज ऑफ कंसर्न बने थे, बिकॉज आपको याद होगा तो डेल्टा वेरिएंट ही वो था जिसने हमारे इंडिया के अंदर सेकंड वेव कॉज किया था इन अक्टूबर लास्ट ईयर, ठीक है। इसके अलावा देखिए, इंडिया ने एक बॉडी बनाई थी इंसाकॉग नाम की बॉडी, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक कंसोर्टियम। एक कंसोर्टियम है, कंसोर्टियम का मतलब क्या होता है, इट इज अ ग्रुप ऑफ 28, देखिए 28 नेशनल लैब्स का ग्रुप है, जो कि दिसंबर 2020 में लास्ट ईयर इसको भी ओरिजिनेट किया गया था, स्टब मतलब बनाया गया था। इन मेन काम क्या है, देखिए SARS-CoV-2 हमें पता है कि लगातार वायरस लगातार म्यूटेट होता है, ठीक है, लगातार म्यूटेट होता है, बट हमें पता कैसे चलेगा कि म्यूटेट हो रहा है, बहुत सारी कंट्रीज ने अपने अपने ग्रुप्स वगैरह बनाए हैं, तो इंडिया ने भी अपने ग्रुप के नाम पे इंसाकॉग को बनाया है, जो कि मॉनिटर करेगा द जीनोमिक वेरिएशंस ऑफ SARS-CoV-2 की क्या कोई नया म्यूटेशन इंडिया के अंदर आया है, क्या कोई नया म्यूटेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड है, जो कि इंडिया के अंदर आ सकता है। किसी भी तरीके का कोई भी अगर पर्टिकुलर रिसर्च करना है वेरिएशंस के बारे में, जेनेटिक वेरिएशंस के बारे में या फिर म्यूटेशंस के बारे में, तो वो इंसाकॉग को करने के लिए बोला गया है, ठीक है। ओके, अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, ये एक छोटा सा टॉपिक आया है कि इराक के पीएम के ऊपर रिसेंटली असैसिनेशन अटेम्प्ट आया है। देखिए, ये हमारे प्री और मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ सकता है, बट इसका हम मैपिंग कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। हम एक बेसिक देख लेते हैं कि इराक के पीएम का नाम है मुस्तफ़ा अल कादिमी, ठीक है। अभी उनके ऊपर एक अटेम्प्ट किया गया है, जो कि असैसिनेशन अटेम्प्ट किया गया है, फेल हो गया वो, और ड्रोन की हेल्प से उन पर अटैक किया गया था। देखिए, बागदाद में एक एरिया है ग्रीन जोन एरिया, ये हैविली प्रोटेक्टेड एरिया है, ये इराक में वन ऑफ द मोस्ट प्रोटेक्टेड एरियाज है, और यहीं पर सारे के सारे डिप्लोमैट्स एंड सारे के सारे मिनिस्टर्स जो हैं इराक के, वो रहते हैं। हुआ क्या है, देखिए रिसेंटली लास्ट मंथ इराक के अंदर इलेक्शंस हुए हैं, ठीक है। जब इलेक्शंस हुए हैं तो वहाँ पर डिफरेंट पार्टीज ने उसमें कॉन्टेस्ट किया है, तो इनकी पार्टी जो है मुस्तफ़ा अल कादिमी सर की पार्टी जो है वो जीत गई है। अब जो उनके अपोजिंग में थे, वो जो सेकंड पार्टी थी, उनको ईरान जो था, ईरान के कुछ मिलिटेंट ग्रुप्स हैं वो उनको बैक कर रहे थे, ठीक है। अब जैसे उनको बैक कर रहे थे, ऑब्वियसली वो हार गए। जब वो हारे तो क्या है, उनको इस बात का, वो इस बात पे वो नहीं कर रहे हैं, मतलब मान नहीं रहे कि हम हार गए, दे हैव रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, और उन्होंने फिर क्या किया है, इस पर्टिकुलर पर्सन पे अटैक किया है, जो कि उनके लीडर हैं, जो कि जीते हैं, मतलब जो पार्टी जीती है उनके लीडर पे अटैक कर दिया उन्होंने, ठीक है। बट उन्होंने अभी तक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया है, बट ये माना जा रहा है कि ईरान बैक्ड मिलिशिया इन्होंने ही अटैक किया होगा। अब हमारे हमारे काम की चीज़, ईरान को, सबसे पहले इराक को देखते हैं। अगर आप मैप को ध्यान से देखेंगे, ओके लेट मी शो यू दिस वन फर्स्ट। अगर आप मैप को ध्यान से देखेंगे तो आपको देखिए, दिस इज इंडिया, ठीक है, इंडिया, दिस इज पाकिस्तान, यहाँ पे खत्म हो रहा है, इसके बाद दिस इज ईरान, एंड ईरान के बगल में जस्ट आता है इराक। सो दिस वाज ऑन वर्ल्ड मैप, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे ईरान। सो इंडिया के साथ कोई भी डायरेक्ट बाउंड्री नहीं है, इंडिया के साथ, इंडिया का एक पोर्ट है ईरान के अंदर, ईरान के साथ डायरेक्ट बाउंड्री टच होती है इराक की, ओके। इसके अलावा अगर हम इराक के बॉर्डर्स वगैरह को ध्यान से देखें, हम विल सी, देखिए फिर से, दिस इज इंडिया, दिस इज पाकिस्तान, दिस इज अफगानिस्तान, दिस इज ईरान। नाउ ईरान के जस्ट बगल में आप देखेंगे दिस इज इराक, ठीक है। इराक के यहाँ पर आप देखेंगे सऊदी अरेबिया, हमें पता है जैसा, ओके। अब इसको हम देखते हैं। नो, अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछना होगा यूपीएससी को, तो वो ये क्वेश्चन पूछेगा कि क्या इराक एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। अगर आप क्लोज जाएं, काफ़ी क्लोज जाएं, तो आप देखेंगे ईरान का एक आउटलेट है जो बाहर निकल रहा है, सी केयरफुली, ये आउटलेट जो है ये बाहर निकल रहा है और पर्शियन गल्फ में जा रहा है। सो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है, अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाए, बट आपको बहुत ही ध्यान से देखना है कि ये पर्शियन गल्फ के अंदर ओपन होता है और कहीं पर ओपन नहीं हो रहा। आप ध्यान से देखिए, एक तरफ से ईरान कनेक्टेड है, टर्की, सीरिया, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, ये 5 कंट्रीज इसको चारों तरफ से घुमाती है, मतलब टच करती है, एक तरफ से नीचे से कुवैत, ये 6 कंट्रीज इसको इसकी नेबरिंग कंट्रीज हैं, बट ये लैंडलॉक कंट्री नहीं है। आपको ध्यान रखना है इस चीज़ के बारे में, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है जो यूपीएससी डायरेक्टली पूछ सकती है कि वेदर इराक इज अ लैंडलॉक कंट्री और नॉट। सो इट इज नॉट अ लैंडलॉक कंट्री, आपको ध्यान रखना है, ओके। नाउ दिस वाज ऑल अबाउट इराक। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट सूडान। सूडान में कुछ प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं, दे कॉल इट सिविल डिसोबीडियंस। नाउ सूडान की कैपिटल है खार्तूम, ठीक है, और सूडान के कुछ सिटीज़ है, उम्बरडम, वाडामी एंड अल्बेरा, इन कुछ सिटीज़ में प्रोटेस्ट वगैरह काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो इन सिटीज़ का आपको नाम ध्यान रखना है। अगर आपको याद हो तो यूपीएससी प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसे कि मैच द फॉलोइंग में आते हैं कि विच सिटीज़ आर ऑफ विच कंट्रीज, जो भी न्यूज़ में सिटीज़ होती है उनको डायरेक्टली मैच द फॉलोइंग में देता है यूपीएससी, ओके। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान, खार्तूम तो काफ़ी फेमस है, बट आपको इन तीनों को स्टेटमेंट सिटीज़ को बार बार रिवाइज करते रहना है, बस आपको देखना है तो आपको आइडिया लगेगा कि ये सूडान के अंदर है। नाउ ये प्रोटेस्ट हो क्यों रहा है, दिस प्रोटेस्ट इज अगेंस्ट द मिलिट्री रूल एंड डिमांडिंग अ सिविलियन गवर्नमेंट। सो हुआ क्या है, सूडान के जो टॉप जनरल थे, जो मिलिट्री जनरल थे उनके, अब्दुल फतह अल बुरहान, उन्होंने क्या किया है, लास्ट मंथ उनकी गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दिया है। और इसके अलावा वहाँ पर एक रूलिंग जॉइंट मिलिट्री सिविलियन सॉवरन काउंसिल हुआ करती थी, जैसे हमारा पार्लियामेंट है, उनकी वहाँ पर सॉवरन काउंसिल हुआ करती थी, जो कि
सिविलियन रूल को आगे बढ़ाने के लिए बात कर रही थी और डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स ले रही थी। इन दोनों ही चीज़ों को अब्दुल फतेह ने क्या किया है, डिसॉल्व कर दिया है। तो यानी कि वहाँ की गवर्नमेंट को भी डिसॉल्व कर दिया और वहाँ का जो सॉवरेन काउंसिल था उसको भी डिसॉल्व कर दिया, और उन्होंने क्या किया, अपना खुद का मिलिट्री रूल लिया है। तो इसी चीज़ के अगेंस्ट में लोग जो है, वहाँ के जो पर्सन्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बट आप जानते हैं मिलिट्री कूप है ये। अगर मिलिट्री कूप है तो लोग लोगों पर बहुत ज़्यादा अरेस्ट वगैरह किया जा रहा है, बहुत टॉर्चर किया जा रहा है, बहुत ही वायलेंटली उस प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश की जा रही है सूडान के अंदर। सो दिस इज सूडान का न्यूज़। अगर आप सूडान को मैप पे देखेंगे, सो दिस इज अफ्रीका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर है सूडान। सी देखिए, नॉर्थ ईस्टर्न साइड में आपको सूडान दिखेगा, ठीक है। अब सूडान को देखिए, सूडान के जस्ट बगल में एरिट्रिया है, इथोपिया है, साउथ सूडान है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, चैड है एंड इजिप्ट है। ये कंट्रीज हैं जो कि इसके आसपास में है। नाउ आपको जो एक चीज़ पे ध्यान देना है वो ये है, देखिए ये एक पहले सिंगल रीजन हुआ करता था। नाउ इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू टू। जो ऊपर वाला पार्ट है उसका नाम है सूडान एंड सेकंड वन इज साउथ सूडान। सबको ध्यान ये रखना है कि सूडान एंड साउथ सूडान आर नॉट द सेम। सूडान इज अ डिफरेंट कंट्री एंड साउथ सूडान इज अ डिफरेंट कंट्री। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट सूडान। नाउ अगर आप आज के द हिंदू न्यूज़पेपर को देखेंगे तो उसके बिल्कुल लास्ट पेज पे जाइएगा तो आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, उस क्वेश्चंस का हमने आंसर निकालने की कोशिश की है। सो प्लीज चेक दिस आउट, ठीक है। हम देखते हैं इसका आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन था कि 1983 में टोटल 4 इंडियन साइट्स थे जो कि डब्ल्यूएचएस में इंक्लूड किए गए थे, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किए गए थे। कौन कौन से थे? सो ताजमहल है, फर्स्ट इज, सेकंड इज आगरा फोर्ट, थर्ड इज अजंता केव्स एंड फोर्थ इज एलोरा केव्स। ये चार जो थे, ये पहले 4 साइट्स थे इंडिया के जिनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का ऑफर दिया था, स्टेटस दिया था यूनेस्को ने दिया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया बिकॉज ये फर्स्ट 4 साइट्स हैं। यूपीएससी भी इसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछ सकता है कि कोई भी स्टेट किसी भी एक पर्टिकुलर साइट का नाम दे देगा और पूछेगा कि वॉज इट द फर्स्ट साइट और नॉट, ठीक है, ऐसा पूछेगा कुछ। सेकेंड वॉज दैट ओनली विच इज द ओनली मिक्स्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया। मिक्स्ड हेरिटेज साइट देखिए, दो टाइप की हमारे टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंदर दो साइट्स को मतलब वो दिया जाता है। एक होता है कल्चरल साइट्स और एक होता है नेचुरल साइट्स। तो अगर कोई पर्टिकुलर चीज कल्चरल साइट्स के लिस्ट में आएगी तो उसे कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट बोला जाएगा, और जो नेचुरल में आएगी उसे नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट बोला जाएगा। बट कंचनजंगा नेशनल पार्क जो है, ये एकमात्र ऐसी साइट है जो कि कल्चरल और नेचुरल दोनों को ही वो करता है, फुलफिल करता है, इसलिए इसे मिक्स्ड हेरिटेज साइट बोला जाता है। और इंडिया के अंदर दिस इज द ओनली मिक्स्ड हेरिटेज साइट। ओके, इसके अलावा देयर आर टोटल 3 रेलवेज हैं, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज, नीलगिरी माउंटेन रेलवेज एंड कालका शिमला रेलवेज। ये 3 हैं, इनको कलेक्टिवली डेजिग्नेट किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर एज माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है किन किन रेलवेज को माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया का दर्जा दिया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर। तो फर्स्ट इज दार्जिलिंग हिमालय, सेकंड इज नीलगिरीज एंड थर्ड इज कालका शिमला। नाउ नेक्स्ट इज विच इज द ओल्डेस्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया। तो हमें पता है कि भीमबेटका रॉक शेल्टर सबसे ओल्डेस्ट है, अराउंड 36,000 ईयर्स अगो का ये मतलब रॉक शेल्टर्स था। अगर आपने इसको एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा होगा इसको, तो ये बहुत पुराना है। दिस इज द ओल्डेस्ट ऑफ इंडिया। अब अगर हम ओल्डेस्ट ऑफ इंडिया देख रहे हैं तो ओल्डेस्ट ऑफ वर्ल्ड देखते हैं। देखिए, कनाडा में एक प्लेस है, एक नेशनल हिस्टोरिक पार्क है जिसका नाम है लांस ऑक्स मीडोज, ठीक है। लांस ऑक्स मीडोज नेशनल हिस्टोरिक पार्क जो कनाडा के अंदर है, ये वर्ल्ड का पूरे ओल्डेस्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो आपको प्री में कैसे कंफ्यूज किया जा सकता है, यूपीएससी ऐसे कंफ्यूज कर सकता है। अगर इससे पूछना होगा तो ये पूछेगा कि भीमबेटका रॉक शेल्टर इज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो हमें ध्यान रखना है कि भीमबेटका से पहले भी एक पर्टिकुलर साइट है जो कि लांस ऑक्स मीडोज है, ठीक। नाउ इसके अलावा विच इज द फर्स्ट सिटी टू बी इंक्लूडेड इन वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया। तो अहमदाबाद को उसको इंक्लूड किया गया था। ये पहली सिटी थी जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर इंक्लूड की गई थी, गुजरात के अंदर है, ठीक है। इसके अलावा देखिए, एक एवी फौना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, इसको 1981 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस दिया गया था। नाउ इसका नेम चेंज कर दिया गया, इसका नाम है क्यूलाडो नेशनल पार्क। क्यूलाडो नेशनल पार्क के बारे में आपने जरूर सुना होगा, बट हो सकता है कि आपको ना पता हो कि इसका पुराना नाम एवी फौना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है बिकॉज यूपीएससी ऐसे छोटे छोटे ट्रिक्स जरूर खेलता है कि वो नेम को चेंज कर देता है जहां पर वो उसके पुराने या फिर न्यू नेम्स को पूछेगा जो नॉर्मली बहुत कॉमन नहीं होते हैं, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आज का एनालिसिस। अगर हम शॉर्ट में इसको रिवाइज कर लें तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको ट्रू एंड फॉल्स के फॉर्म में करने हैं। यू कैन गिव द आंसर, आप ट्राई कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। पहला फर्स्ट स्टेटमेंट इज पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज द फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर्ड इन असम। सेकंड इज मिथाइल आइसोसाइनाइड इज द लीथल गैस दैट रिलीजेस फ्रॉम बायोगैस प्लांट्स। थर्ड इज दैट मुलापेरिया डैम जो है वो केरला के अंदर है बट इट इज मेंटेन बाय तमिलनाडु। फोर्थ इज कि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली क्वैश कर दिया है हरियाणा गवर्नमेंट के डिसीजन को ऑफ 75% जॉब कोटा फॉर लोकल्स। Fifth is Sardinia and Sicily, they are under the sovereignty of Italy. Next is that Iraq जो है ब्लैक सी को टच करता है नॉर्दर्न साइड से। एंड फाइनली अजंता केव्स जो है इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ वाघेरा रिवर। आपको याद होगा ये 2021 के प्रीलिम्स में पूछा गया था, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर डाला है। यू शुड प्लीज ट्राई इट आउट एंड आप इसको सही करने की कोशिश कीजिए।
इसके अलावा कल जो हमने रिवीजन किया था उसके कुछ आंसर्स हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट इज दैट फायर एक्सटिंग्विशर कंटेन्स ऑक्सीजन एज प्राइमरी गैस. नहीं, दिस इज फॉल्स, बिकॉज आपको याद होगा उसके अंदर CO2 होना चाहिए. अगर फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर हम ऑक्सीजन डाल देंगे और उसको हम किसी आग पे डालेंगे तो आग तो और बढ़ जाएगी ना. तो हमें बेसिकली उसके अंदर CO2 डालना है. ठीक है, CO2 डालना है. उसके ऊपर CO2 की अगर हम एक लेयर बिछा देंगे तो ऑक्सीजन का सप्लाई कट हो जाएगा और उसके कारण क्या होता है, आग बुझ जाती है. तो दिस इज हाउ फायर एक्सटिंग्विशर वर्क्स. सेकंड इज द इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ कोल इन द वर्ल्ड. दिस इज ट्रू. सेकंड लार्जेस्ट आपको याद होगा, कंज्यूमिंग में भी सेकंड लार्जेस्ट है, प्रोड्यूसिंग में भी सेकंड लार्जेस्ट है. ठीक है. थर्ड इज दैट चुंबी वैली इज सिचुएटेड एट द साउथ ऑफ सिलीगुड़ी कॉरिडोर. जी नहीं, इट इज नॉट एट द साउथ, इट इज एट द नॉर्दर्न साइड में है, वो साउथ में नहीं है. ठीक है, दिस इज फॉल्स. फोर्थ इज डेंगू इज अ वायरल डिजीज कॉज बाय वुल्वेशिया वायरस. तो ये फॉल्स है, आपको ध्यान होगा. वुल्वेशिया वायरस कॉज नहीं करता है इससे. डेंगू जो है उसको रोकने का एक तरीका है वुल्वेशिया, और ये वायरस नहीं है, ये बैक्टीरिया है. एक्चुअली बैक्टीरिया होना चाहिए, बिकॉज वुल्वेशिया बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया है जिसको डेंगू की पॉपुलेशन में डाल दिया जाता है ताकि उनकी जो डेंगू की स्प्रेड करने की जो पावर है वो फिनिश हो सके, खत्म हो जाए. ठीक है. नेक्स्ट इज अबाउट वंशाधारा रिवर कि ये ओडिशा में फ्लो होता है. दिस इज ट्रू, बिल्कुल सही है ये चीज. नेक्स्ट इज काहो विलेज इज द न्यूज ड्यू टू रिसेंट इंट्रूजन बाय चाइना. जी नहीं, इसमें कोई रिसेंट इंट्रूजन नहीं हुआ है. ये न्यूज में इसलिए है बिकॉज इसका डॉक्यूमेंट्री बनाने की बात की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा. तो डॉक्यूमेंट्री अगर बनेगा, क्यों बनेगा, बिकॉज चाइना ने 1962 में जब अटैक किया था तो इस पर्टिकुलर विलेज के लोगों ने इंडियन सोल्जर्स के साथ में मिलकर काफी हेल्प की थी इंडियन सोल्जर्स की. ठीक है. एंड लास्ट वॉज दैट कांगरी हीटर इज द फर्स्ट पोर्टेबल हीटर टू गेट GI टैग फ्रॉम कश्मीर. नहीं, ये यस दिस इज ट्रू कि ये कश्मीर में है और ये फर्स्ट पोर्टेबल हीटर भी है, मतलब, लेकिन इसको GI टैग अभी रिसेंटली नहीं दिया गया है, या फिर कभी भी इसको GI टैग नहीं दिया गया है. सो दिस वाज ऑल फॉर एनालिसिस ऑफ टुडे. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. अगर आपको सही लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू.